Yes, good morning, student. Yesterday we have discussed what does hegemony means. कि hegemony का क्या meaning होता है? Hegemony means the dominance of one state over the other states, and mostly in the world politics, mostly the countries wants to gain and retain power, and this power is in the form of military dominance, economic power, political clouds, and culture superiorities. And there is the hegemony of only the one country, that is the USA. And after the integrations of the USSR in 1991, there was only one superpower, that is the US. कि उसके बाद 90 के इंटीग्रेशन के बाद एक ही जो थी वो कंट्री बची, और वो थी यूएसए, और उसी की हेजमनी पूरे वर्ल्ड पे जो है वो स्थापित हुई. एंड इसमें ये है कि हेजमनी इज़ नॉट ओनली इन द मिलिट्री पावर, hegemony in the all fields of its influence the country in the all fields of life, like military, like ideological, cultural, and all these things, and economic power also. And USA has many, today we will discuss has many as a hard power. There are two types of hegemonies, yeah, two types of politics, yeah, two types of powers, that is the hard powers and the soft powers. Hard powers means the military power, the strength of the military, and the soft powers, that is related to the cultural, ideological, all these things related to the, and the world trade, and the environmentals, all these things related to the soft powers. Today we will discuss the hard powers, and the US is the root of the hard power is not as the in USA. इससे पहले भी जो था हार्ड पावर, द रूट ऑफ हार्ड पावर्स लाइज इन द क्लासिकल ग्रीस. ग्रीस से ये हार्ड पावर्स जो था स्टार्ट हुआ था. देयर वाज अ सिटी ऑफ द एथेंस. एथेंस में भी जो था मोस्टली जो था देयर वाज ओनली द वन सिटीज ऑफ द ग्रीस में. जो एथेंस था उसी की जो पूरे ग्रीस में जो थी हेजमनी थी. बट यूएस हेजमनी इज डिफरेंट फ्रॉम द hegemony of the Athens. क्योंकि Athens there was a hegemony of only the one city over the Greece, but here is the USA hegemony is all over the world. कि USA की जो hegemony है, लीडरशिप है, डोमिनेंस, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है. जबकि जो ग्रीस था उसमें जो एथेंस जो सिटी थी उसी का जो पूरी ग्रीस पर जो था हेजमनी थी. और USA हेजमनी जो है मोस्टली दैट इज़ द military dominance of the USA. And here is the example of Aisha, who was doing well in her studies and was planning to study medicines in the university, but but she has lost her leg in the an American missiles, and she has lost her leg, and that is it is a hard power hegemony. कि जहाँ पर कोई भी अटैक होता है मिलिट्री के थ्रू करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्ड पावर्स हेजमनी. यस, US powers lies in the overwhelming superiority of the military power. मोस्टली जो है मिलिट्री पावर्स में US की हेजमनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि इतनी पावरफुल जो आर्मी, इतनी मिलिट्री जो है कहीं पर भी नहीं है जितनी कि US में है. And American military dominance today is both absolute and relative in absolute terms. And इसमें जो है टुडे जो है यूएस की जो हेजमनी आज भी जो है यूएस इज मिलिट्री पावर्स जो है कोई भी इसका जो है नो कॉम्पिटिशन्स है किसी दूसरी कंट्री का, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है. और इसके अलावा जो है विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस पर कोई भी. एंड द and it is can reach any point in the on the planet. means कि अर्थ में कहीं भी कोई वॉर होता है, कुछ होता है, कि यूएस जो मिलिट्री है वो कहीं पर भी जा सकती है और इतनी एब्सोल्यूट है
और इससे इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और जो है इसमें जो है डेंजर ऑफ वॉर जहाँ पर भी उनको नज़र आता है वहाँ पर जो यूएस है जो है आर्मी जो है वो पहुँच सकती है। एंड एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी ऑफ यूएसए इज फैक्ट दैट नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच दैम, कि कोई भी जो है इसका मैच जो है नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द यूएस मिलिट्री पावर। Yes, USA today spend more than its military capability than the next 12 powers combined, कि पूरे किसी भी देश की दूसरे देश अगर 12 कंट्रीज़ को भी कंबाइन कर लिया जाए तो वो भी इतनी पावरफुल जो है नहीं बन सकती जितनी कि यूएस की जो है मिलिट्री है, इतनी पावरफुल है। और इसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज यूएसए स्पेंड मोस्ट ऑफ इज इकोनॉमिकली मोस्ट ऑफ स्पेंड ऑन द मिलिट्री, अपनी मिलिट्री पे बजट जो है उसका मिलिट्री पर ही ज़्यादा जो है उसका खर्च होता है। एंड द मोस्टली जो है पेंटागन्स बजट गोज इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, मोस्टली जो पेंटागन्स है जो कि यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर ऑफ द यूएसए है उसमें ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है स्पेंड कहाँ पर होता है? और मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एंड आल्सो इन द टेक्नोलॉजिकली जो है इसको जो है यूएस जो है इस पर बजट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर खर्च करता है। दस द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ यूएस नॉट ऑन बेस्ड ऑन अ हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ऑन ए क्वालिटेटिव गैप, एक टेक्निकल गैप, कि यूएस की ये नहीं है कि यूएस जो है उसकी जितनी भी मिलिट्री पावर है दैट इज ओनली अ स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री पावर। नो, देर इज अ गैप बिटवीन द पावर मिलिट्री पावर ऑफ द यूएसए एंड देन द अदर्स कंट्रीज। व्हाट इज दैट इज द टेक्नोलॉजिकल गैप। टेक्निकली जो है यूएसए ने इतने ज़्यादा जो है न्यू टेक्निकल यूज़ किया है जिससे कि कोई भी इसकी जो है उसमें उसकी मुकाबला जो है नहीं कर सकता। इसलिए टेक्निकली जो है मिलिट्री जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें जो है मोस्टली जो है लेकिन कोई भी जो है सुपर पावर जो है वो ये अगर कोई भी जो गेन करती है दूसरी जो मिलिट्री पावर की थ्रू से, उनका मेन पर्पस क्या होता है? मोस्टली में ओनली 4 टास्क जो है द 4 टास्क, वन इज़ टू कॉन्कर, डेटर्स, पनिश एंड पुलिस। ये 4 ही टास्क होते हैं कि किसी को जीतना, उस पर अपना हक जताना, उसको पनिश करना एंड देन द पुलिस, और कि उसको परेशान करना और उसको जो है इस सारे जो 4 टास्क जो होते हैं। लेकिन इन द इराक इन्वेजन्स इसमें अमेरिका टोटली जो है सक्सेसफुल जो है नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें यूएस कैपेबिलिटी जो थी वो ना तो उनको डेटर कर सकी और ना ही उनको पनिश कर सकी। क्योंकि मोस्टली जो था जब इराक में था मोस्टली द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूएस, ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने गलत हमारे पे जो है ये आक्रमण कराया, और इसलिए जो है मिलिट्री पावर्स जो है उस पे उनके मिलिट्री के अगेंस्ट जो था वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, 50,000 पीपल्स वर किल्ड इन द इराक इन्वेजन, कि इसमें 50,000 लोग जो थे मारे गए थे। इसलिए जो लोग थे वो जो है इनके अगेंस्ट हो गए थे। इसलिए जो है मोस्टली जो है यहाँ पर इन द इराक इन्वेजन में जो है यूएसए की मिलिट्री जो पावर थी उसको जो है देखा गया था कि वो वहाँ पर टोटली सक्सेसफुल नहीं हुई थी। एंड द नेक्स्ट इज़ द हेजमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर्स, कि सबसे पहले हमने देखा है कि यूएसए एज ए हार्ड पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड पे जो था उसका टोटली डोमिनेंस आज भी है। बिकॉज देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन द मिलिट्री पावर ऑफ द यूएसए एंड द अदर कंट्रीज़। एंड किसी भी को अपनी हेजमनी पूरे वर्ल्ड पे एस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि खाली मिलिट्री पावर ही उसके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है एंड कल्चरल आइडियोलॉजिकल भी इसको स्ट्रॉन्ग होना जो है इस पे पड़ता है। यस, टुमारो वी विल डिस्कस हेजमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर्स। थैंक यू।